Good morning, students. Today we will study IUPAC nomenclature of organic compound, which is the most important topic. How to name organic compounds. IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. So before starting the topic, let's discuss what is the need of IUPAC naming for organic compounds. Now we know that organic compounds are very large in number. Organic compounds were so large that it became difficult to remember them by their common name. So, in order to simplify the naming of organic compound, scientists introduced IUPAC nomenclature in 1947. Is it clear? IUPAC rules introduce हुए थे to systemize the naming of organic compounds. Okay, because organic compounds are very large in number. तो हर एक organic compound का name remember रखना it became very difficult. तो उसको simplify करने के लिए हर एक organic compound की naming के लिए scientist ने कुछ rules बनाए. That is IUPAC rules for naming of organic compounds. ठीक है, अब उन्हीं rules के according हम हर एक organic compound की naming करते हैं. And any given IUPAC name denote only one organic compound. So let's start. So firstly, IUPAC nomenclature consists of three main parts, that is word root, suffix and prefix. ठीक है, ये इसकी basic units है. So let us discuss these one by one. First is word root. Word root is the basic unit of the name, and word root denote the number of carbon atoms present in the parent chain. पेरेंट चेन में जितने भी कार्बन एटम प्रेजेंट है इट डिनोट्स बाय वर्ड रूट. सो व्हाट इज पेरेंट चेन? पेरेंट चेन इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड. जब भी आप जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हो उसमें जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पॉसिबल चेन है विच ऑल्सो इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज पेरेंट चेन. ठीक है, so if the longest possible chain consists only one carbon, then for one carbon word root is meth. If the organic compound contain two carbon, for two carbon word root is 3. 3 carbon के लिए prop. For 4 carbon atoms word root is but. 5 pent. 6 hex. For 7 carbon atom word root is hept. 8 कार्बन के लिए ओक्ट. फॉर 9 कार्बन एटम्स वर्ड रूट इज नॉन. फॉर 10 डेक. 11 अनडेक. एंड फॉर 12 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वर्ड रूट इज डोडेक. ठीक है, वर्ड रूट फॉर 1 2 3 4 अप टू 12 कार्बन एटम्स आर मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक, अनडेक and dodec. Now second part is suffix. Suffix जो word root के बाद mention होंगे. Suffix which comes after the word root. Now suffix are of two type, primary suffix and secondary suffix. First is primary suffix. Primary suffix it indicate whether the carbon chain is saturated or unsaturated. Saturated means when in a carbon chain bond formed is only single bond. Unsaturated when there is double or triple bond present in an organic compound. So for saturated organic compound containing only single covalent bond, primary suffix used is ane. ठीक है, so their general name are alkane. Alk represent the common word root. For unsaturated compound with double bond, primary suffix used is ene and their general name is alkene. Alk word root may be meth, eth, prop, but. Unsaturated compound with triple bond, primary suffix ine. ठीक है, YNE and their general name alkyne. Is it clear? Now next is secondary suffix. Now secondary suffix is added to the primary suffix. 1 डिग्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्राइमरी, और अगर 2 डिग्री है
2 degree represent secondary. Now, secondary suffix is always added to the primary suffix to indicate the nature of functional group present in the organic compound. अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स हमेशा प्राइमरी सफिक्स के बाद आएंगे. फंक्शनल ग्रुप हमने किया था. फंक्शनल ग्रुप आर दोज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एटसेट्रा. सो here are list of some important functional group and their secondary suffix. Now for alcohol, symbol is OH and secondary suffix for alcohol OL, OL. Aldehyde, symbol CHO, CHO, which is also written as C double bond OH. Symbol secondary suffix al. कीटोन C डबल बॉन्ड O, सेकेंडरी सफिक्स ओन. ठीक है, यहाँ पे 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, that represent that C double bond O is attached with 2 alkyl group. कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, और जब हम इसकी ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे that is C double bond OOH. Secondary suffix for carboxylic acids are oic acid. Now carboxylic acids are represented by C double bond OH. Now if OH is replaced by any another group, then the functional group derived from carboxylic acids are the derivative of carboxylic acid. ठीक है, and these are like acid amide, acid chloride, esters, anhydride, etc. Acid amide in which OH group is replaced by NH2 group, C double bond O and H2. And secondary suffix for amide group is amide. If OH group of carboxylic acid is replaced by Cl, then it become acid chloride. And secondary suffix for acid chloride say are oil chloride. And if OH is replaced by OR, R represent any alkyl group, then the functional group become esters, and the secondary suffix for esters are alkyl O8. alkyl group है वो use होगा as a prefix. Amines, NH2 group, secondary suffix remains same, that is amine. Nitrile, CN group, when carbon chain is attached with the carbon of cyanide group, then secondary suffix remains same, that is nitrile. Now next, isonitrile, when the carbon of organic compound make bond with nitrogen, अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग हुई है then functional group become isonitrile, and secondary suffix for this is same, that is isonitrile. Acid anhydrides are C double bond O, C double bond O, and secondary suffix for acid anhydrides are anhydride. तो यहाँ पे जो हमने फंक्शनल ग्रुप यूज किए that is acid chloride, acid amide, ester, acid anhydrides, all these are acid derivatives of carboxylic acid. Is it clear? Now next, always remember that when we add secondary suffix to the primary suffix, then the terminal E of the primary suffix, that is an, in and ein, is dropped. अब अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी है, लाइक अगर अल्कोहल का ओल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जब भी हम सेकेंडरी सफिक्स को इसमें ऐड करेंगे तो ओल और ओल का ओ और प्राइमरी सफिक्स का ई बोथ आर वोवल्स, और हमेशा कभी भी 2 वोवल्स एक साथ नेमिंग में प्रेजेंट नहीं होंगे. तो अगर 2 वोवल्स एक साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे हम प्राइमरी सफिक्स के ए को ड्रॉप कर देंगे. ठीक है, लाइक इन दिस क्वेश्चन CH3, CH2, COOH. Now firstly indicate the functional group present in this organic compound. Now here organic functional group is C double bond O, OH. ठीक है, which is carboxylic acid. Now it contain 3 carbon. 3 carbon के according word root is prop. All the carbon atoms are attached by single bond. अब जब हम primary suffix mention करेंगे, primary suffix represent the bond formed only between carbon atom.
ठीक है, कार्बन कार्बन आपस में कैसे बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल, डबल या ट्रिपल, नॉट बिटवीन कार्बन एंड सम अनदर एटम, लाइक हियर कार्बन एंड ऑक्सीजन आर अटैच्ड बाय डबल बॉन्ड। तो जो प्राइमरी सफिक्स है आर नॉट रिप्रेजेंटेड दिस टाइप ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को ही चेक करना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो प्राइमरी सफिक्स इज एन, प्लस सेकेंडरी सफिक्स फॉर दिस ग्रुप इज ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। तो यहाँ पे ई और ओ दोनों एक साथ दो वोवल्स आ गए, तो हम प्राइमरी सफिक्स के ई को ड्रॉप करेंगे एंड द नेम ऑफ कंपाउंड बिकम प्रोपेनोइक एसिड। इज इट क्लियर? सिमिलरली mention the functional group present in second compound, CH3 C डबल बॉन्ड हो CHO। अगर CHO है तो यहाँ पे अब ये ध्यान रखना कि लास्ट में C डबल बॉन्ड O और कार्बन के साथ सिंगल हाइड्रोजन है, सो इट इज एल्डिहाइड। अगर C डबल बॉन्ड OH आपका सबसे फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है देन इट इज ऑलवेज एल्डिहाइड। अब कई बार स्टूडेंट एल्डिहाइड और कीटोन में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कीटोन के केस में C डबल बॉन्ड O ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे और वी कैन से दैट दिस कार्बोनिल ग्रुप आर ऑलवेज प्रेजेंट इन बिटवीन ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, वो कार्बन चेन में हमेशा सेंटर में प्रेजेंट होगा। अगर सेंटर में प्रेजेंट है देन इट इज ऑलवेज कीटोन, और अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप आपका सबसे फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है देन इट इज ऑलवेज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही C डबल बॉन्ड O ग्रुप कंटेन कर रहे हैं। एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के साथ दिस C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज नेम्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। कीटोन में दोनों साइड कार्बन चेन ही होगी, तो कीटोनिक ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट इन सेंटर एंड एल्डिहाइड ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजिशन। इज इट क्लियर? एंड एल्डिहाइड ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजिशन। इज इट क्लियर? So the name of this compound become 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 के लिए वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है एन, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए सफिक्स अल, एन और अल जब आप ऐड करोगे तो ई ड्रॉप हो जाएगा, तो नेम बिकम प्रोपेनल। फॉर दिस कंपाउंड इट कंटेन C डबल बॉन्ड O ग्रुप इन सेंटर, नंबरिंग करोगे सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, डेट मीन्स द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप है। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 के लिए वर्ड रूट ब्यूट, ऑल द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड, वर्ड रूट एन। नाउ कीटोनिक ग्रुप सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है। इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट एनी अनदर पोजीशन अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन देन वी ऑलवेज मेंशन द नंबर ऑफ दैट पोजीशन। ठीक है, बिफोर सफिक्स, हम सफिक्स से पहले उस पोजीशन का नंबर हमेशा मेंशन करेंगे। तो कीटोन के लिए सफिक्स इज ओन, टू ओन, ई यहां से ड्रॉप हो जाएगा। नाउ इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, CH3 CH2 COO CO CH3। इज इट क्लियर? Now functional group is C double bond O C double bond O. That is anhydride group. सेंटर में CO ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों तरफ कार्बन चेन है, that is anhydride group. Anhydride is named as alkanoic anhydride. Anhydrides are acid derivative of कार्बोक्सिलिक एसिड, सो दे आर नेम्ड एज एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफर हैं। ठीक है, एक साइड 2 कार्बन एटम्स है और एक साइड 3 कार्बन एटम्स हैं, सो इट इज नेम्ड एज 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ, 3 के लिए प्रोप, सो दे आर नेम्ड एज इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। अलग अलग आप उसको मेंशन करोगे, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये जो सारे रूल्स है ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे।
नेक्स्ट इज CH3OCH3। तो हेयर अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप मेंशन है, सिंगल ऑक्सीजन है, दैट मीन्स द ग्रुप इज ईथर। एंड फॉर ईथर IUPAC नेमिंग इज एल्कोक्सी एल्केन। ऑक्सीजन के एक तरफ जो चेन है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल्कोक्सी एंड द अनदर कार्बन चेन इज रिप्रेजेंटेड बाय एल्केन। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो आप किसी को भी ऑक्सी में रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी को भी मेन चेन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट अगर डिफरेंट है नंबर ऑफ कार्बन एटम तो जनरली जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है उसको हम एल्कोक्सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और द साइड विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेम एल्केन। ठीक है, यहाँ पे सेम है, एक ही नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो फॉर वन वर्ड रूट इज मिथ, सो मिथोक्सी मीथेन। नाउ हेयर फंक्शन ग्रुप इज साइनाइड ग्रुप। ठीक है, साइनाइड ग्रुप के लिए जो सफिक्स होगा दैट इज नाइट्राइल। इट कंटेन 2 कार्बन एटम, सो इट बिकेम इथ, सिंगल बॉन्ड है, इथेन नाइट्राइल। अब यहाँ पे जो ई है, ई ड्रॉप नहीं होगा बिकॉज द फर्स्ट लेटर ऑफ नाइट्राइल दैट इज एन इज नॉट अ वोवल। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट के साथ हम हमेशा वोवल ही रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली सेकेंड कंपाउंड हियर, नाउ द कार्बन फॉर्म बॉन्ड विद नाइट्रोजन। यहाँ पे हमने NC मेंशन किया, दैट मीन्स कार्बन का जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के साथ बन रहा है, सो फंक्शनल ग्रुप इज आइसोनाइट्राइल। नाउ रिमेंबर in this case now carbon is not make a bond directly with this carbon atom, so when we count the total number of carbon atoms तो उसमें हम इस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आइसोनाइट्राइल में हमें पता है NC ग्रुप ही प्रेजेंट होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन इज ओनली 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड का नेम बनेगा दैट इज इथेन आइसोनाइट्राइल। इज इट क्लियर? Now next compound is CH3, CH2, CH2, NH2. So functional group is amine. So the name of this compound is, it contains 3 carbon atoms by single bond, prop, single bond के लिए suffix an और amine के लिए secondary suffix is amine. So the compound name of compound become propanamine. Now in this compound, now NH2 group NH group attached with 2 ethyl groups. Now in this case nitrogen make covalent bond with 2 alkyl group and with 1 hydrogen, that means it is secondary amine. Secondary amine की जब हम नेमिंग करेंगे it is named as alkyl alkanamine. ठीक है, जनरली अगर दोनों साइड जो अल्काइल ग्रुप है दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है तो द अल्काइल ग्रुप विद लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम आर नेम्ड एज अल्काइल ग्रुप एंड द कार्बन चेन विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर नेम्ड एज एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो हम किसी को भी अल्काइल की ग्रुप में और किसी को भी अल्केन की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, पेरेंट चेन और सब्स्टिट्यूएंट चेन आपकी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम कंसिस्ट कर रही है, both contain 2 number of carbon atom, so ethyl 2 के लिए word root eth, alkyl form में it become ethyl ethanamine। और अब यहाँ पे now this alkyl group is attached directly with nitrogen, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, इसको इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पे N मेंशन करेंगे, N ethyl ethanamine, that means this ethyl group is directly attached with nitrogen. Is it clear? Now next is CH3, CH2, CH2, C double bond O NH2. Now C double bond O NH2, अगर NH2 डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, now this group is amide group. ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है आपका ये amide, और amide के लिए जो सफिक्स यूज होगा that is amide simple. So it contain total 4 कार्बन एटम, 4 के लिए वर्ड रूट इज ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन और सेकेंडरी सफिक्स इज एमाइड। एमाइड आएगा तो एन का ई ड्रॉप हो जाएगा,
So the name of this compound become butanamide. Now indicate the functional group in this compound. Here अब यहाँ पे देखो CHO आपका टर्मिनल पोजीशन पे है. अब अभी मैंने कहा था कि CHO ग्रुप इज प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, देन इट इज ऑलवेज एल्डिहाइड. ठीक है, बट यहाँ पे फर्दर CHO ग्रुप में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ भी अटैच्ड है. ठीक है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा. इट इज C डबल बॉन्ड O ग्रुप. C डबल बॉन्ड O ग्रुप में ऑक्सीजन एक साइड से अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है और कार्बन की फर्दर इधर हाइड्रोजन या किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग हो सकती है. तो जब कार्बोनिल ग्रुप में एक ऑक्सीजन और आ जाएगा देन इट बिकम ईस्टर, और ईस्टर का हम नेम करते हैं एल्काइल एल्केनोएट की फॉर्म में. ईस्टर इज नेम्ड एज एल्काइल एल्केनोएट. ठीक है, now the side which contain less number of carbon atom are named as alkyl group, and the side which contain large number of carbon atom it is considered as a main chain and named as alkanoate. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के इस साइड एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो जो सिंगल कार्बन है इट इज नेम्ड एज मिथाइल and 2 carbon are considered as main chain methyl ethanoate. Is it clear? So these are the example which include only word root, primary suffix and secondary suffix. Now next is prefix. Now prefix always comes before the word root. Prefix again are of 2 type, primary and secondary prefix. First primary prefix. Now primary prefix is used before the word root to distinguish cyclic from acyclic compound. ठीक है, primary prefix are used only for cyclic compounds. ठीक है, cyclic compound के लिए हम जो prefix है वो cyclo यूज करेंगे. Now for example in this compound, cyclic compound in which first and last carbon make bond with each other and form a ring type structure. So here total number of carbon atom 1 2 3 4 5. cyclic compound है. So in cyclic compound we use the prefix cyclo. Cyclo total 5 के लिए word root pent, single bond है ane. So the name of this compound becomes cyclopentane. Now here the number of carbon atom 1 2 3 4 5 6. cyclic compound है, so prefix cyclo is used before word root. Total 6 carbon atom के लिए word root hex, double bond है तो suffix ene is used. So the name of this compound is cyclohexene. And in this compound total 6 carbon atoms are there. So prefix cyclo, 6 के लिए word root hex, 2 डबल बॉन्ड है, एक फर्स्ट पोजीशन पे एक फोर्थ पोजीशन पे. अब ये अभी वैसे हमारा रूल अभी आया नहीं है, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन मोर देन 1 अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स आर देयर. ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है तो उनको मेंशन करने के लिए हम प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा का यूज़ करेंगे. अब 2 डबल बॉन्ड है, 2 है, तो वी मेंशन द प्रीफिक्स डाई. अब अगर हम सिंपल डाई इन लिखते हैं प्रीफिक्स में, ठीक है, तो हमें तो नहीं पता ना कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे मेंशन है, तो पोजीशन भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी विद हाइफन. तो यहाँ पे हम वर्ड रूट के बाद हाइफन लगाएंगे, हाइफन के बाद आप पोजीशन मेंशन करोगे. फर्स्ट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड इज प्रेजेंट एट फोर्थ. दोनों पोजीशन आप कोमा से सेपरेट करोगे, देन डाई इन. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, अभी हमने पीछे किया था डेट 2 वोवल्स आर नॉट कम विद ईच अदर. ठीक है, अब जब हमने सेकेंडरी सफिक्स यूज किया तो प्राइमरी सफिक्स में हमने ई ड्रॉप कर दिया. सिमिलरली अब जब हम डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स का यूज करेंगे बिफोर प्राइमरी सफिक्स, अब जो वर्ड रूट और डाई का जो डी है बोथ आर कॉन्सोनेंट है, तो जैसे 2 वोवल्स एक साथ नहीं आ सकते वैसे ही 2 कॉन्सोनेंट भी एक साथ मेंशन नहीं होंगे. तो उसके लिए हम फर्दर वर्ड रूट में ए ऐड कर देंगे. ठीक है, so the name becomes cyclohexaone 1,4-diene. Is it clear?
Now next is secondary prefix. Secondary prefix generally represent the substituents. Now when certain groups are not considered as functional group, अब वो ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप से कंसिडर नहीं होंगे but instead are treated as substituent. Now these groups are known as secondary prefix and are added immediately before the word root or the primary prefix. ठीक है, या तो हम उन्हें वर्ड रूट से पहले मेंशन करेंगे, बट अगर हमारा कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड में वर्ड रूट से पहले साइक्लो प्रीफिक्स आएगा और साइक्लो प्रीफिक्स से पहले फर्दर फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स आएंगे. ठीक है, सो दे आर एडेड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड रूट और द प्राइमरी प्रीफिक्स इन केस ऑफ cyclic compound or alicyclic compound in alphabetical order. So if the substituent group are halogens, for halogens secondary prefix are always halo. ठीक है, halogens को हम halo की फॉर्म में मेंशन करते हैं. Like for fluorine secondary prefix is fluoro, for chlorine secondary prefix is chloro, for bromine it is bromo, iodine के लिए ido. Similarly for nitro group secondary prefix is nitro, NO that is nitroso, and triple bond N diazo. OR इथर के लिए हम उसको एल्कोक्सी एल्केन की फॉर्म में लिखेंगे, अभी हमने किया था. ठीक है, तो उसमें हम प्रीफिक्स एल्को R ग्रुप CH3 है, देन मिथोक्सी C2H5 है, देन इट इज नेम्ड एज इथोक्सी. ठीक है, अगर कोई कार्बन चेन एज अ साइड चेन यूज हुई है, ठीक है, अगर कोई कार्बन आपका मेन चेन में नहीं आ रहा है तो उसको हम हमेशा एज अ सब्सटीट्यूएंट सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखेंगे एज अ एल्काइल ग्रुप. लाइक अगर एक सिंगल कार्बन साइड में गया देन इट इज रिटन एज मिथाइल. 2 कार्बन से अगर देन इथाइल ग्रुप. ठीक है, तो उसको अगर हमारा कोई भी कार्बन चेन साइड चेन में गया देन इट इज ऑलवेज रिटन एज सेकेंडरी प्रीफिक्स बाय एल्काइल ग्रुप. ठीक है, 3 कार्बन्स अगर आपके साइड चेन में है देन दे आर रिटन एज एन प्रोपाइल. एन प्रोपाइल एन. अब 3 कार्बन एटम्स है, 3 में फर्दर हमारी जो पॉसिबिलिटीज आ जा सकती है कि ऑल द 3 मे बी प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन और मे बी 1 कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन फर्दर ब्रांचिंग. ठीक है, अगर तीनों के तीनों कार्बन एटम आपके स्ट्रेट चेन में है तो उसको हम मेंशन करेंगे एन प्रोपाइल, एन आइसोमर. अगर कोई भी एक कार्बन आपका ब्रांचिंग में चला गया है, देन इट इज रिटन एज आइसोप्रोपाइल. आइसो ग्रुप में जनरली जो ब्रांच्ड कार्बन है, अगर एक सिंगल ब्रांचिंग हुई है वो सेकेंड लास्ट कार्बन पे हुई है देन इट इज ऑलवेज रिटन एज आइसो ग्रुप. ठीक है, सॉरी, अगर किसी कार्बन पे 3 सब्सटीट्यूएंट्स अटैच्ड है देन इट इज टर्शरी ग्रुप. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4. अगर कार्बन डायरेक्टली 3 सब्सटीट्यूएंट्स अटैच्ड है देन इट इज टर्शरी ब्यूटाइल. इज इट क्लियर? So this is all about the IUPAC naming. IUPAC naming generally consists of word root, prefix and suffix. We can say that the complete IUPAC name of organic compound consists of the following parts. सबसे पहले secondary prefix, then primary prefix, then word root, then primary suffix, then secondary suffix. Secondary suffix always represent the substituent. Primary prefix represent the cyclic compound. Word root represent the total number of carbon atom. Primary suffix represent the type of bond formed between carbon atom. Secondary suffix represent the main functional group. Is it clear? So, write the name of this compound on the basis of word roots, prefix and suffix. So, first is CH2, CH, Cl, CH2, CH3. CH3 कार्बन की वैलेंसी हमेशा कंप्लीट होगी. सब आपको ये ध्यान रखना है. सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स. सो अब यहाँ पे देखो इस कंपाउंड में क्लोरीन हेलोजन है. हेलोजन सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज होगा. अब हेलोजन फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, तो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है तो हम उसकी पोजीशन हमेशा मेंशन करेंगे और पोजीशन हम हमेशा उसको वही नंबर देंगे
and we always select the lowest position for any substituent. तो अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं देन इट गेट सेकंड पोजीशन, इस साइड से नंबरिंग करेंगे देन इट गेट 1 2 3 थर्ड पोजीशन. तो नंबरिंग इज डन फ्रॉम दिस साइड. ठीक है. सेकंड पे आया है सेकेंडरी प्रीफिक्स फॉर एनी हेलोजन ग्रुप इज हेलो. तो क्लोरीन के लिए क्लोरो, तो इट बिकम 2 क्लोरो. पोजीशन मेंशन करोगे, फिर पोजीशन और नेम के बीच में हम हाइफन लगाएंगे. प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो सिंपल यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा. देन वर्ड रूट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4, सो इट बिकम 2 क्लोरो ब्यूट. सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन. कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सो द नेम ऑफ कंपाउंड बिकम 2 क्लोरो ब्यूटेन. नाउ फॉर दिस कंपाउंड कोई भी साइड चेन या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ मेंशन नहीं करेंगे. साइक्लिक कंपाउंड है तो प्राइमरी प्रीफिक्स बिकम साइक्लो. टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6. वर्ड रूट हेक्स. सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स एन. अब फंक्शनल ग्रुप OH है. आप पोजीशन यहीं से फर्स्ट पोजीशन कंसिडर कर लो. OH ग्रुप अल्कोहल, अल्कोहल के लिए ओल. फर्स्ट पोजीशन मेंशन करनी जरूरी नहीं है. तो द नेम बिकम साइक्लोहेक्सेनोल. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बिकम साइक्लो. 5 कार्बन एटम है, 5 के लिए पेंट. सिंगल बॉन्ड है एन. And here bromine is present. Now we know that halogens are always used as prefix. So bromine आपका जो प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले मेंशन होगा by the name bromo. So the name of this compound is bromocyclopentane. Is it clear? So this was all about the main parts of IUPAC nomenclature, and we shall continue this topic in our next lecture with the rules of IUPAC naming. For writing saturated hydrocarbon, branched hydrocarbons, unsaturated hydrocarbon, and for different functional group. Thank you and have a nice day.